Hello and welcome back everyone. Today we are going to start with the second chapter of SP, Secretarial Practice, correct? That is Sources of Capital Finance. In the first chapter we have seen that what is corporate finance, correct? What is business finance? Why it is important to study the corporate finance, correct? Over there we have seen the fixed capital and working capital. Now in this particular chapter we are going to see that in order to meet the financial requirements of the business, how the business organization raises the fund, what are the different sources with the help of which business will going to satisfy its financial requirements, correct? Now before starting the chapter, let me ask you that what is fixed capital, what is capital finance? Capital finance होता क्या है? When a finance is required by a company, whenever a finance is required by a company or an organization, an institution, correct, an entrepreneur, in order to meet its business obligation, whenever a finance is required or demanded by a company, by an organization, by an institution, or by an entrepreneur, in order to satisfy their business obligation, correct? That particular finance is called as capital finance. उस finance को हम क्या बोलते हैं? Capital finance. वो पैसा जिसको आप रेस करते हो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए, करेक्ट है? वो पैसा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल फाइनेंस. नाउ एज वी ऑल आर अवेयर, व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, वी ऑल नो दैट फाइनेंस होल्ड्स द की to all activities of the business, correct? Whether we are talking about production or you are talking about the distribution, purchasing हो, sales हो, कोई भी activity हो business की, correct है? It is incomplete without the finance. कोई भी activity या कोई भी obligation आप complete नहीं कर सकते हो when we talk about business अगर आपके पास sufficient appropriate amount of fund available नहीं है. So we can say that over here that finance holds the key to the business activities. It is associated with the all functions of बिजनेस ऑल्सो, करेक्ट है? चाहे आप प्लानिंग की बात करो, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग की बात करो, स्टाफिंग की बात करो, एट ईच एंड एवरी स्टेप इन द बिजनेस आपको किसकी जरूरत पड़ती है? फाइनेंस की जरूरत पड़ती है. सो ओवर हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट फाइनेंस अपार्ट फ्रॉम इट होल्ड्स द की फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो एक्ट एज अ लाइफ ब्लड फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आई ऑलवेज keep going on giving this particular example, correct है? Because it is very much related, बहुत closely related है आपके business से. जितना important हमारे body में blood है उतना ही important business में क्या होता है? Finance होता है. So we can say that the finance is the life blood of the business, correct? Now this finance, this capital finance is accepted as a weapon. Business organization capital finance को क्या करती है? As a weapon use करती है in order to meet their business obligations promptly. अपने बिल्स का पेमेंट करने के लिए, क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स को पेमेंट पे बैक करने के लिए, करेक्ट है? वो क्या करती हैं? कैपिटल फाइनेंस को यूज करती हैं. सो कैपिटल फाइनेंस इज एक्सेप्टेड एज अ वेपन टू पे ऑल द बिजनेस ऑब्लिगेशंस promptly and quickly, correct है? It also helps the business organization to maintain their goodwill and reputation. जितना quickly और जितने जल्दी आप, ठीक है, अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे पेमेंट कर देते हो, ठीक है, उतना बेटर गुडविल, आपका क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है? मार्केट में जनरेट होता है, क्रिएट होता है. सो एवरी बिजनेस, every kind of business, correct? No matter whatever be the nature, size and the type of organization, every business needs a capital. Every business needs a capital finance, correct? To pursue its activities, to pursue its business activities. And when we are talking about जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आ जाती है तो वी ऑल नो दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन अ लार्जर स्केल, करेक्ट है? वो लार्जर स्केल पे ऑपरेट करती हैं. सो व्हेन यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल, एज वी हैव सीन इन द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, करेक्ट है? द बिगर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द लार्जर द प्रोडक्शन, द मोर यू आर गोइंग टू रिक्वायर द फंड, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वर्किंग हो, करेक्ट है? जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितना ज्यादा डिमांड होगा आपके प्रोडक्ट का, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी. So when we are talking about joint stock companies who generally operates on a larger scale, they need a large amount of capital finance to meet their daily as well as long-term requirements, correct? To meet this scale, which operate on a larger scale, requires a huge capital. Joint stock companies requires a huge capital. Now, why the business organization needs a capital to function, to implement their activity? क्यों जरूरत पड़ती है पैसे, करेक्ट है? So the answer is
they require the capital to meet the requirement of extant working capital. They require the fund, correct है, to meet the requirement of the fixed capital and working capital which is arising into the business at the time of implementation of their activities, correct है. Now ये जो फिक्स कैपिटल है ये क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, एक शॉर्ट सा ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं इसका. फिक्स कैपिटल इज अ काइंड ऑफ कैपिटल व्हिच इज इन्वेस्टेड इनटू द फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, व्हिच स्टेज इन अ बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली एंड व्हिच गिव्स यू द रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म, इमीडिएट रिटर्न नहीं देता. व्हेयरएज वर्किंग कैपिटल इज अ काइंड ऑफ कैपिटल व्हिच over the requirement of working capital generally arises to meet the daily expenses of the business, to meet the daily obligations of the business entity, correct है. Amount of money required to carry out your day to day expenses of the business, correct है. वो जो amount होता है वो होता है हमारा working capital. So business organization needs the capital finance in order to meet the requirement of fixed and working capital, जिसके हेल्प से वो क्या करती हैं, फर्दर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कॉन्टैक्ट करती हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं और मार्केट में टू द एंड कस्टमर क्या करती हैं, डिलीवर करती हैं. नाउ दिस ह्यूज कैपिटल फॉर्मेशन, करेक्ट है, दिस ह्यूज कैपिटल फॉर्मेशन इज अंडरटेकन बाय कलेक्टिंग द ह्यूज कैपिटल थ्रू डिफरेंट सोर्सेज. ये फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, करेक्ट है, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज द mix up of the various sources of fund, correct है. So with this capital formation is done with the help of, correct है, this huge capital is collected by raising the fund through the different sources. Now what are these different sources, how the company uses them, what are their features, correct है, what are the different types available, correct है. ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में क्या करने वाले हो, इन डिटेल में स्टडी करने वाले हो. Now let me give you again a short brief review regarding the capital formation. Capital formation is a process of collection of capital. It is a process of collecting the capital from the various sources according to the financial plan of the company. Companies अपने financial plan के accordingly, ठीक है, जैसे उनके finance department का finance मैनेजमेंट का एटीट्यूड होगा, अकॉर्डिंगली वो अपने फाइनेंशियल प्लान को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सोर्सेज पे डिसीजन लेती हैं कि कहाँ से कितना फंड आपको क्या करना है, रेस करना है टू मीट योर ऑब्लिगेशंस, टू मीट योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. Now when we talk about the sources, these various sources of finance, correct, these various sources of finance are available to business. That particular sources we are going to understand in this particular chapter in detail. But before moving to this particular sources, जिसमें आपका इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, डिवेंचर्स आते हैं, लोन विच द कंपनी लोन फॉर विच द कंपनी ऑप्ट्स टू द कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, करेक्ट है. पहले हम समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स है, कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है. व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्सेज के अंडर द कंपनी रेजेस द फंड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. टेक दी आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं. एज अ स्टूडेंट इफ यू नीड अ फंड, इफ यू आर रनिंग विद अ शॉर्टेज ऑफ फंड, करेक्ट है, आप सबसे पहले किसको अप्रोच करते हो, यू आर गोइंग टू अप्रोच टू योर पेरेंट्स एंड योर गार्जियंस एंड योर सिबलिंग्स, करेक्ट है. वो आपका फर्स्ट अप्रोच होता है क्योंकि वो आपको सबसे इजी मीडियम लगता है जिसको ऑप्ट करके आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो. योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट, योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स एंड योर गार्जियंस, करेक्ट है, जो रिटर्न में आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, जो रिटर्न में आपसे प्रॉमिस भी नहीं लेते हैं कि आपको ये वापस मुझे देना ही है, आप उसको रिटर्न नहीं भी दोगे, देन ऑल्सो इट इज वेल एंड फाइन, करेक्ट है. सो व्हेन कंपनी रेजेस द फंड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है, इट इज कॉल्ड द इंटरनल सोर्स. जैसे आपने घर के अंदर ही क्या किया, फंड रेज किया, तो वैसे जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फंड रेज करती है तो वो होता है इंटरनल सोर्स. अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास आपके पेरेंट्स थे, गार्जियंस थे, सिबलिंग्स थे, करेक्ट है. कंपनी के पास क्या ऑप्शन होगा, कंपनी के पास ऑप्शन होगा शेयर्स का और रिटेन्ड अर्निंग का, करेक्ट है. अभी आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शेयर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. रिटेन्ड अर्निंग्स, आप हर बार जब प्रॉफिट अर्न करते हो तो आप अपने कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट एंड पार्सल क्या करते हो, सेव करके रखते हो. Whenever a company earns a profit, it saves a part and parcel of the profit in order to meet the future uncertainties. Correct? As and when you gain an ample amount of retained earnings,
बिजनेस उसको फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, एंटरप्रेन्योर उसको फिर से उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। व्हाई? बिकॉज मनी मेक्स मनी। उस पैसे को, उस प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए वो उसको फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। सो इंटरनल सोर्स मीन्स व्हेन अ कंपनी रेजेस द फंड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कौन कौन से सोर्स आपके पास अवेलेबल हैं? शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स। आपने अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से और अपने सिबलिंग से फंड ले लिया, बट स्टिल यू आर रनिंग विद अ शॉर्टेज ऑफ फंड, करेक्ट है? सो नाउ इन ऑर्डर टू मीट द फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ योर कैश, यू आर गोइंग टू ऑप्ट टू दी आउटसाइडर्स। आप अपने घर के बाहर जाओगे। नाउ यू आर गोइंग टू स्कैन, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, करेक्ट है? अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो बाय गिविंग दी प्रॉपर, गोइंग थ्रू विद द प्रॉपर पेपर वर्क एंड लीगल प्रोसीजर, आप कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑप्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू रेज दी फंड, करेक्ट है? ये सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, जिनके हेल्प से आप क्या करते हो? फंड रेज करते हो। इन दी सेम वे, जैसे आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल नहीं कर पाती है, देन इट स्टार्ट स्कैनिंग दी सोर्सेज, पॉसिबल सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर निकलती है और वहाँ पे पॉसिबल सोर्सेज को स्कैन करती है टू मीट द एक्सेस और द रिमेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दी कैश। अब वहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज उनको मिल सकते हैं या कौन कौन से ऑप्शंस उनके लिए ओपन होते हैं? डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ट्रेड क्रेडिट, opting the loan from the commercial bank, and you can also go for the opting the loan from the financial institution within this chapter only, ठीक है? within this particular chapter only, one by one हम internal sources, पहले हम internal sources को कवर करेंगे, shares, उसमें equity और preference, फिर हम retained earning कवर करेंगे, and then we'll move on towards the external sources of raising the fund. Okay, thank you. Please go through with the lecture. If you have any doubt, just comment me on the box. I'll give you the reply. Thank you.